ਰਣਜੀਤ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਾਏਗਾਂਵਕਰ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ DRO PCS ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਾਏਗਾਂਵਕਰ ਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂਡ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ DRO PCS ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੋਪੀ, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਵਾਏਗਾਂਵਕਰ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹतर ਇਲਾਜ कर सके। मेरा नाम अभिजीत वाहेगांवकर है। मैं हाथ, कलाई, कोहनी और नसों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और आज जलंधर में हम लोग ये जो कैंप करने जा रहे हैं, इसका मकसद मात्र एक ही है कि हम लोगों तक पहुँच पाएँ। जैसे डॉक्टर तरुण ने कहा थोड़ी देर पहले कि दुर्भाग्यवश हाथ, कलाई, हथेली या नसों की या कोहनी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों में नहीं है, या लोग ये नहीं जानते कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम निवारण कर सकते हैं या जिसके लिए इलाज उपलब्ध है। और स्पेशलिस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत किसी को सींग लगे। स्पेशलिस्ट का मतलब वो होता है कि जिस बंदे ने किसी एक फील्ड के लिए, एक क्षेत्र के लिए अपना पूरा टाइम समर्पित किया हो। तो स्पेशलिस्ट वो होता है कि जो किसी एक प्रॉब्लम या एक हिस्से के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो और उससे उलझन जो लोगों को होती है उसका निवारण कर पाएँ। तो आज जलंधर में हम लोग इसीलिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि हम लोग लोगों तक
पहुंच पाएँ, लोगों को ये जानकारी दे पाएँ कि जटिल से जटिल जो समस्याएं होती हैं, भले वो पैदाइशी प्रॉब्लम हो, जैसे कि छोटे बच्चों में उंगलियों का ना होना, उंगलियां जुड़ी होना, पैदाइशी अंगूठा ना होना, या तो काम करने वाले व्यक्ति में एक्सीडेंट की वजह से, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से हाथ में जैसे लकवा या पैरालिसिस हो जाता है, या तो हड्डी टूटने और गलत तरीके से जुड़ने से जो भी समस्याएं होती हैं कलाई में या हाथ में, उसका निवारण, जैसे कि आर्थ्रोप्लास्टी या आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से जो हम शस्त्रक्रिया करते हैं वो कलाई में भी हम कर पाते हैं, जिसको हम रिस्ट आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो सारी ये जो टेक्निक्स हैं इसका इस्तेमाल करके हम छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध या बड़े लोगों तक, इंजरी से लेकर पैदाइशी प्रॉब्लम्स तक और चमड़ी से लेकर हड्डी तक, किसी भी समस्या का या किसी भी प्रॉब्लम का हम निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती यही है कि आप लोग स्पेशलिस्ट तक पहुंच पाएँ। भले आप जहां रहते हो वहां पे आप ढूंढ लें कि कौन हाथ के सर्जरी का स्पेशलिस्ट है और उनसे परामर्श करें, ताकि आप अपनी समस्या का बेहतर से बेहतर इलाज कर पाएँ। आप लोग हाँ जी पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने कहा भी बच्चों में पैदाइशी जो उनका अंगूठा या उंगली ना होना, तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहती है? जी, तो अंगूठा ना होना ये बहुत जटिल समस्या होती है, क्योंकि अंगूठा हमारे हाथ का तकरीबन 50% फंक्शन हमें देता है। तो 40 से 50% काम सिर्फ अंगूठे से होता है। आप प्रयास कीजिएगा अंगूठे को अंदर रख के शर्ट का बटन लगाएं या तो अपनी लेस बांधें, मुमकिन नहीं होता है। खाना नहीं खा पाते हम लोग, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते। तो इसको हम सर्जरी जो होती है इसमें 2 प्रकार की होती है। जो पहले उंगली से हम अंगूठा बनाते हैं इसको हम पॉलिसाइजेशन कहते हैं। तो पूरी की पूरी उंगली यहाँ से उठा के घुमा के सामने ला के रखते हैं, और ये सर्जरी शायद हैंड सर्जरी में सबसे उच्च प्रति की सर्जरी मानी जाती है। किसी बच्चे को आप जब अंगूठा बना के देते हो और वो उस अंगूठे का इस्तेमाल कर सकता है, और इस सर्जरी को आज की तारीख में जिस प्रकार से हम करते हैं इसको डेवलप करने में 100 साल लग गए। आज 100 साल के बाद हम इस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं जहाँ पे बच्चा जो है किसी चीज़ को पकड़ पाए। इसको पॉलिसाइजेशन कहते हैं। दूसरी सर्जरी होती है जो हम पैर की उंगली, जिसको हम माइक्रो सर्जरी करके नसों के साथ, रक्तवाहिनी के साथ पैर की उंगली या तो अंगूठा हाथ में लगा देते हैं माइक्रो सर्जरी करके, ताकि फिर से अंगूठा बन पाए। तो इसको फ्री टो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये 2 प्रकार से हम अंगूठा बना सकते हैं। सर, पंजाब में ट्रेंड है कि जब भी कोई खूनी बाजू में प्रॉब्लम होती है लोग मालिश के बाद जाते हैं, मालिश करने। हाँ जी, वो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण है या वो सही है? तो मालिश करना ये हमारे मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेद में भी दिया हुआ है। पिछले 5000 साल से मसाज भी हमारी इलाज की पद्धति का एक अंग है, हिस्सा है। परंतु हर चीज़ के लिए मालिश ही जवाब नहीं है। कई बार इस मालिश से क्षति ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक्सपर्ट या किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से पहले आप परामर्श करें, उनकी राय लें। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ जी आप मालिश करवा सकते हैं तो फिर मालिश करवाएं। परंतु कई समस्या ऐसी होती हैं कि जिसमें मालिश करने से कोहनी में नई हड्डी बन जाती है और वो समस्या और भी जटिल और भी कठिन हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आप योग्य तरह से मार्गदर्शन लें, योग्य इंसान या डॉक्टर के पास पहुँचे और उनकी सलाह से या उनके परामर्श से आगे का इलाज तय करें। सो लेट मी कम ऑन द सेम पॉइंट। सर मैंने जी। मेरे कोलीग ने उसके लिए सर कोई एज लिमिट, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए कि वो उसकी सक्सेस रेट? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम ये कहते हैं कि 3 साल से लेकर 3 से 5 साल के अंदर अगर करें तो ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि अंगूठा बनाने के बाद हमारे मस्तिष्क को, अब मेरी उंगली अंगूठा बन चुकी है और मैं उसका इस्तेमाल अंगूठे की तरह करूं, ये हमारे प्रोग्रामिंग एरिया जिसे हम कहते हैं, मस्तिष्क में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है।
परंतु हमने ये भी देखा है कि जैसे एक्सीडेंट के बाद जिसका अंगूठा चला जाता है किसी वयस्क या किसी बड़े इंसान अडल्ट में, तो उन लोगों में भी हम पहली उंगली से अंगूठा बनाते तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क में अंगूठे की छवि ऑलरेडी बन चुकी है। जिन बच्चों को पैदाइशी अंगूठा नहीं होता है तो मस्तिष्क में अंगूठे की छवि होती ही नहीं है, तो उसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो वो बनाने के लिए अंगूठे की छवि मस्तिष्क में बनने के लिए 3 साल या 5 साल के अंदर अगर ऑपरेशन करवाएं तो सबसे उचित और सबसे बेहतर उसके नतीजे होते हैं। तो वंस द सर्जरी गेट डन सर, उसके बाद वो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली वो वर्किंग उसकी हो जाती है? तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होती, इसके लिए फिजियोथेरेपी होती है, लेकिन वो कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। बच्चे बड़े समझदार और बड़े होशियार होते हैं तो वो अपने आप कई बार सीख जाते हैं। अगर उनको आप दिखाओ, देख के सीखते हैं, बच्चों को बताना नहीं पड़ता है। तो अगर आप उनको दिखाएंगे कि कैसे उठाना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें कि आप उनको कोई खिलौना दे दो, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप उस अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपी की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कई बार माँ बाप ने ही घर पे करवानी होती है, जिससे ये रिजल्ट्स और भी इम्प्रूव हो पाए। The success rate of this surgery depends on the age at which the child presents, या बच्चा जब आता है। दूसरा, पहली उंगली की जो जोड़ जो है वो भी हिल पा रहे या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हर एक बच्चे में ऑपरेशन कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में हम ये कर पाते हैं और तकरीबन 97 से 98% इसमें सक्सेस रेट है। कहाँ ये हो सकता है, तो एज ही पॉइंटेड आउट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर प्लेइंग विद योर ओन हैंड। अब मुझे याद है छोटे होते मैं खड़ा हुआ एक बार ना बेड के ऊपर, आई वॉज इन ए हाउस इन शिमला और समवेयर मंडी, उनकी छतें 11 फुट पे होती हैं, पंखा लटक रहा है, आप बेड के ऊपर खड़े हो, जैसे कंबल झाड़ने लगा, चादर झाड़ने लगा, हाथ ऊपर आ गया। फॉर्चुनेटली पंखा चल रहा था, मेरी उंगलियां नहीं कटी, बच गया, पर सारी यहाँ पे कट तो आ गया। अच्छा, वहाँ मंडी में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, अगर कट जाती तो परमानेंट कट गई थी। सो ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जैसे इन्होंने कहा, जितने ये कैंप लगाएंगे, जितने लोगों तक जाएंगे, उतना हमें पता लगेगा भी इसको। प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। एक्सीडेंट्स के बाद यू रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, बट वहाँ पे अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा, वाई वेस्ट टाइम ओवर देयर। हो सकता है डॉक्टर साहब वो पट्टी कराने जाते होते भी, यार इधर ब्लड रोक दो या टॉर्किनेट बंद दो भी ताकि ब्लड ना फ्लो, दैट इज़ ओके, बट गो टू द बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वे डॉक्टर अभिजीत आए हैं और वी विल लाइक टू डेवलप दिस सेंटर एज ए स्पेशलिस्ट सेंटर।